برائے خوشنودی محمد الحادی محمد حسین سے بلند کر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ برائے خوشنودی علی اور اولاد علی علیہ السلام کا اتفاق اور بلند سے بلند کر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ سورۃ المبارکہ۔ من شر ذي شر في العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الغزلية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ ہاں مومنان، ہم نے شیطان کے بارے میں کیا کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان کا مشن بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اس کی بری کوالٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے اندر ڈال دے۔ آپ نے دیکھا آج میں جو ہماری آخری آیتیں ہیں اس کا جو 2 لفظ ہے نا اس کے اوپر آنا چاہتی تھی، لیکن من الجن نہیں، مجھے تھا کہ میں جن پہ پڑھوں، پر مجھے لگا کہ برداشت نہیں کر پائے گی، سب کوئی وہی ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ عجب ہوتی ہوں کہ جب میں کسی کو بولتی ہوں نا کہ آپ کے نام پہ آیا آپ سورہ جن پڑھے، تو کہتے ہیں کیا آنٹی ہمیں جن ہے، کیوں آپ نے ہمیں سورہ جن دی ہے؟ تو لوگ سورہ جن پڑھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اتنی غلط ہوتی ہے ہمارے بارے میں۔ حالانکہ سورہ جن جس کو جن لگ جاتا ہے اس کو تو میں کبھی سورہ جن نہیں دیتی، کبھی نہیں دیتی، امپاسبل ہے کہ جس کے مجھے لگے نا اس میں تھوڑا سا جن کا سایہ ہے، ہوتا ہے نا انسان ہے، میں کبھی اس کو نہیں دیتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سائیکالوجی کیا ہے انسان کی۔ میں اس کو کہوں گی نا جن، اور آلریڈی اس کے اوپر تھوڑا اثر ہے تو وہ مینٹلی اس کو برداشت نہیں کرتا، تو قرآن بھی ہمیں منع کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا مذہب 3 چیزوں سے چلتا ہے، 3 چیزیں، ایک سنت یعنی اہل بیت کی سنت جو ہمیں بتایا ہے وہ، اور ایک توحید یعنی اللہ کی کتاب وہی سنت، اور تیسری کون سی چیز ہے جس کے اوپر مذہب چلتا ہے؟ برائے خوشنودی اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ ہم مومنان کون سی 3 چیزیں جس کے اوپر ہمارا مذہب چلتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی ہمارا جو مذہب ہے وہ ختم نہیں ہوگا؟ پتہ ہے کون سی 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر جس کی بنیاد بنا کے وہی کہتی ہوں نا کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جاتے، کسی کو بھی منبر رسول پر بیٹھنے کا حق نہیں ہوتا جب تک اس کو کافی چیزیں نہ پتہ ہوں۔ علم عرفان، علم کلام، صرف، نحو، منطق، لوجک، بدایا نہایا، اصول، یہ ساری چیزیں جب اس کو پتہ ہو نا تو ہی اس کے اوپر حق ہوتا ہے کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر بول سکتا ہے، کیونکہ کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوجک ہماری لوجک نہیں برداشت کرتے نا، ہماری عقلیں نہیں برداشت کرتی، لیکن اسلام جو ہے وہ مذہب، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک رہے گا، یہ چلتا ہے قرآن سے۔ قرآن ہے اللہ کی کتاب، وَلَا تُخَطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے محمد
मोहम्मद, तुम 40 साल मुसलसल अरबों के बीच में रहे, तुम इन्हीं के बीच में पैदा हुए। कोई एक गवाह आ जाए जो ये कहे कि 40 साल में मोहम्मद ने अपने हाथ से लिखा, कोई एक आकर कहे कि मैं मोहम्मद का उस्ताद हूं, तारीख में नहीं मिलता। कोई एक आकर कहे कि मोहम्मद सीखने के लिए कहीं गए थे। अल्लाह खुद कहते हैं सूरह अनकबूत आयत नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ेगा, वला तुखत्तहु बियमीनिक, ए मोहम्मद तुम अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल करते तो भी नहीं लिख सकते थे मिनल किताब, किसी किताब में से भी नहीं। क्यों? हमें पता है हमारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम को हर जबान आती है, जो भी उसके साथ जैसे जबान में बात करते हैं वो उनको आती थी, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इस तरह से रखा? क्योंकि खुद अल्लाह जवाब देता है इसी आयत में। सूरह अनकबूत आप पढ़िएगा, अल्लाह कहता है इदन लरताबल मुब्तलून, ए मोहम्मद जो इस कुरान के दुश्मन है, जो बहाने तलाश करते हैं, इदन उस वक्त लरताब रेप में पड़ जाएंगे, शक में पड़ जाएंगे, मुब्तलून जो बातिल लोग हैं, जिनके बातिल तसव्वुरात, वो कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से इसको लेकर आए। हाँ मोमिना, काश हमारे पास वही कहते हैं अल्लाह हमें इतनी जिंदगियां देता और काश हमें इतने हौसले देता। हौसला बड़ी क्या कहते कीमती चीज है। 1 घंटा 2 घंटा मेरे पास लोग आते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आराम से मेरे पास बातें करते हैं। जब मैं कहूँगी ना क्लास में आ जाए, टाइम नहीं है, तौफीक की बात होती है, तौफीक वहाँ से जिसको तौफीक होती है ना, जिसके तौफीक के दरवाजे बंद हो गए, क्या कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो हाँ मोमिनात, यहाँ पर जब हम कुरान की बात करते हैं तो कुरान एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है, क्योंकि एक गैर मुसलमान आता है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास, कहता है इमाम से कहता है कि या इमाम मैं मुसलमान हो गया। इमाम ने कहा क्या तुमने देखा कि मुसलमान हो गए? तो कहता है कि मौला मैंने देखा कि अजब है, वो मोहम्मद तो 40 साल जमीन पर ही रहे थे, किसी को पता है, सबको पता है, सिर्फ शाम गए थे, वो भी छोटे थे जब शाम गए थे बिजनेस के लिए ना, और फिर मदीना में हिजरत की, वो भी कुरान के बाद उनको ले गए थे लोग। और कुरान का मौजज़ा क्या था? आज अगर रहती दुनिया में इस्लाम है ना, वो सूरह अनआम की 2 आयतों की वजह से। मदीने से एक शख्स आया था, उसने सुनी थी कि 2 आयतें, पहले तो उसको बोला कि ना सुनो, वो लंबी स्टोरी में इसमें नहीं आती। जब उसने 2 आयतें सुनी जिसमें था कि वालिदैन के साथ ऐसे करो, अल्लाह कसम के साथ शिरक न करो, ये सब सुना, पहले तो उसको कानों में रुई चुसा है, लेकिन ना सुनो। जब उसने निकाला, जो मदीने से शख्स आया था जिसको पहले यसरब कहा जाता था, उसने कहा ये क्या पागलपन है जो किसके लिए? इसके लिए कहते हैं कि ये मजनून है, ये वो सारी बातें कर रहा है जिसकी हमें तलाश थी, जिसके लिए हम निकले थे। 2 आयतें थी सूरह नाम की, मुझे लगता है 102 101 या 102 होगी। हाँ सिर्फ 2 आयतें सुनी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा हमें ये सिखाओ जो तुम पढ़ रहे हो, हमें नहीं पता ये किसकी किताब है, हमें सिखाओ, क्योंकि ये जो चीजें बोल रहा है ना, इसकी हमें सख्त जरूरत है, वरना हम तबाह हो जाएंगे। रसूल खुदा ने फिर वो इस्लाम कबूल किया, 2 शख्स उसको दिए कि जाओ ये मेरे कारी हैं, तुम्हें सिखाएंगे। 2 साल या 1 साल के बाद या 11 महीने के बाद खुद रसूल खुदा को वो ले गए मदीने में। आज अगर पूरा इस्लाम फैला है तो सिर्फ 2 आयतों की मदीने में उनको हिफाजत के लिए ये सब कुछ किया। 2 आयतें पूरी दुनिया को बदल सकती है, क्या पूरा कुरान क्या कर सकता है, सोच नहीं सकते। तो हाँ मोमिनात, सबसे पहली जो हमारी बुनियाद है बहुत इसकी गहराई में नहीं आती, क्योंकि कुरान बहुत बड़ा मौजज़ा है। आपको पता है एक साइंसदान बैठा था, एक मौलवी बैठा था, ईरान में तेहरान में एक सेमिनार था, वहाँ पर एक साइंसदान भी बैठा था, एक मौलवी बैठा था। तो कुरान की आयत आई वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, वइज़ल बिहारु फुज्जिरत की वाली आयत आई। तो मौलवी उठा, मौलाना साहब उठे और उसने तकरीर की, कहा इस आयत का जब तिलावत की गई, इस आयत में सबको बोल रहा है, वो उठा उसने तिलावत की वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, जब कयामत बर्पा होगी और जब सारे दरिया आग बन जाएंगे। साइंसदान उठा और उसने कहा ये आयत बताती है, हमें ये फॉर्मूला बताती है, कहती है कि अगर पानी
का फॉर्मूला H2O है, अगर आप इसको बदल दोगे तो ये आग निकालेगा। ये पेट्रोल कैसे बनाते हैं, ये हमें आयत ये वाला फॉर्मूला दे रही है। तो आप देखिए क्या है कुरान के अंदर, क्या नहीं हम समझ पाते। तो जो हमारी बुनियाद है ना वो 3 चीजों में चलती है। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 अहल बैत यानी सुन्नत रसूल, नंबर 3 क्या चीज है, अक्ल पे ये चीज चलती है। अक्ल कहती है कि ये काम इस्लाम में नहीं हुआ था तो हमें उसको साइड पे रखना चाहिए। नहीं, शायद लॉजिक वो वाली लॉजिक, शैतान वाली लॉजिक नहीं। लॉजिक की भी किस्में होती है ना। किसी ने आकर बोला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला आप तो कहते हो अक्ल जो है वो मोमिन की विरासत है, मुआविया के पास क्या था, क्या मुआविया के पास अक्ल नहीं थी? मौला ने कहा नहीं, वो अक्ल नहीं थी, वो शैतानियत थी। तो अक्ल में और शैतानियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हाँ मोमिनात, इन 3 चीजों पे हमारा दीन चलता है। अगर हम इस 3 चीजों पे आ जाए, और फिर यहाँ पर कुरान क्या कहता है कि हमारी जमीन पे कुछ ऐसी मखलूकात हैं जो हमें नजर नहीं आती, मिनल जिन्नती वन्नास, वो जिनों में से भी हैं। तो कुरान में जब आप सूरह जिन पढ़ते हो उसके 2-3 पॉइंट्स बताती हूँ और फिर मैं आऊँगी शैतान की तरफ। बराए किस-किस ने सूरह जिन पढ़ी है? तर्जुमा नहीं पढ़ा ना। आप खुद कुरान की कुछ ऐसी आयतें हैं जब हम पढ़ते हैं ना, मैंने तो पूरा हमारा जो हमारी बड़ी क्लास है उसमें तो हमने पूरे टॉपिक्स किए। कुरान से हमने हर वो चीज़ जो जिनों के अंदर क्या होती है, जिन करते क्या है, कितने होते, वो सब हमने कर लिया है हर एक आयत के अंदर। सूरह जिन की आयतें इतना मेरे दिल को लगती है। ये शैतानी जो प्रोग्राम्स हमारे अंदर चल रहे हैं ना, जो अभी इंटरनेट के जरिए से ये शैतान अपना नेटवर्क बना रहा है, ऐसा है ना, है। उसके प्रोग्राम्स में, शैतान के प्रोग्राम में सबसे बड़ा जो सबसे मेन प्रोग्राम वो है कि तुम वसवसे पैदा करो अल्लाह की जात के बारे में भी। चाहे फिर अगर मोमिन होता है तो उसको वसवसे डालता है, मैं ही मिला था अल्लाह को दुख देने के लिए, क्या उसने वसवसे डाल दिया, मुझे बदजन कर दिया मेरे खुदा से, मुझे मेरे खुदा के बारे में उसने सोचने में मजबूर कर दिया कि मेरा खुदा बुरा है, इसने मेरे साथ बुरा किया, बदजन किया। वो हर स्टेप से वो चलता है। नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि हमारे हाथ में हमारी जो जिंदगी है, अभी हमने देखा हम जब खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जीते हैं, है ना, जो मेन काम हम करते हैं उनके अलावा जो हमारा टाइम बचता है ना, साइंस कहती है कि जो हमारा मेन टाइम होता है ना, जो बचता है खाने से, पीने से, सोने से और जो हमारे कोई नहाने धोने से, ये मेन टाइम ऐसा होता है जिसमें हम अपनी जिंदगियों के फैसले लेते हैं, जो हम मेन स्टेप्स लेते हैं, जो खास कदम हम आगे बढ़ाते हैं, वो उसमें लेते हैं। लेकिन आजकल हमारे हाथ में स्मार्टफोन आ गया, अब हम फैसले नहीं लेते। अब जो दिमाग में हमारे डाला जाता है ना, अब हमारा स्मार्टफोन जो है वो फैसले लेता है हमारे बारे में। अब हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। पता है साइंस में भी नहीं पता मुसलमानों के बारे में है या नहीं है, साइंसदानों ने कुछ अरसा पहले, 4-5 साल पहले तहकीक की है। पता है उन्होंने क्या तहकीक की? जितने भी फोन थे ना उनके हाथ में, आजकल हम अपनी जिंदगियां नहीं जीते हैं, उन लोगों की जिंदगियां जीते हैं जो हमें दिखाई जाती हैं। हमारे जो ख्वाहिशात होती है ना, वो ख्वाहिशात होती है जो हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हमारी अपनी पर्सनल नहीं होती 90% लोगों की। ये तहकीक बताती है। आप लग्जरी लाइफ देखते हैं, हम किस तरह से हमें कपड़े पहनने हैं, किस तरह से हमें जाना है, मेरे जहन में वो लाइफ आती है, मेरे जहन में ऐसा हस्बैंड आता है, मेरे जहन में ऐसे बच्चे आते हैं। ये क्या है? हमारा रोल मॉडल आजकल वो बनाया है जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। शैतानी नेटवर्क जो हम कह सकते हैं ना, ये है कि इससे बचाव के लिए हमारे पास विल पावर होना चाहिए। और शैतान के 2 मिशन और हैं हमारे पास। फिर आती हूँ मैं, मुझे लगता है फिर आज भी तो मुझे अपने मिशन नहीं बयान करने देगा। फराज कृष्ण मोहम्मद से
وہ اللہ کی طرف اسٹیپ بڑھا رہا ہے, قدم بڑھا ہے, اللہ کی طرف جاتا ہے, تو وہ اس کے ساتھ دو کام کرتا ہے, اور وہ دو خطرناک کام کرتا ہے. پھر آتی ہوں میں سورہ جن کی کچھ دو تین آیتوں کی طرف, جو کہ بہت بہت اسٹرانگ ہے, ہمارے دماغ کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. ہاں مومنات, شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ول پاور کو ختم کرتا ہے. آج کتنے پرسنٹ بچے ہیں, عورتیں ہیں, مرد ہیں جس کے اندر ول پاور آپ سمجھتے ہیں نا, میں کر سکتا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا, اور میں کیوں نہیں کر سکتا, میرے اندر اتنی طاقت ہے. لیکن ہم 80 یا 90% لوگ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا, میں تھک گیا, میں ہار گیا, مجھ میں نہیں ہے ابھی, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ جو ول پاور ہے نا, شیطان ہمارے اندر سب سے پہلے ہمارا ول پاور ختم کرتا ہے. اب پتہ ہے دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ برائے خوشنودی محمد و آل محمد ہاں مومنات, دوسرا کام کیا کرتا ہے شیطان؟ ایک تو ہمارا ول پاور ختم کر دیا نا, کمزور کر دیا نا, ہو گئے نا ہم کمزور مینٹلی, فزیکلی. جب ایک انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے, اس کی باڈی خود بخود کہتی ہے میں پیرالائز ہو گئی. سب کچھ اللہ نے اس لوب پہ رکھا. میں نے پہلے مجلس میں پڑھا تھا, لوب اولل الالباب میں نے یہاں رکھا ہے. ہاں مومنات, جب انسان کا ول پاور کمزور ہو گیا نا, وہ انسان ہار گیا. اللہ نے ایک قوت رکھی ہے انسان کے اندر. انسان تب تک نہیں ہارتا, یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا, انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک ہار مان نہ لے. لیکن جیسے ہی ہار نہیں مانتا, وہ کبھی بھی, انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو کائنات کی کوئی مخلوق ہرا نہیں سکتی. بہت مضبوط, بہت پاورفل, اور اس کا پاور جو ہے وہ دو چیزوں میں ہے. انسان کی طاقت دو چیزوں میں ہے, اور شیطان دو چیزوں پہ حملہ کرتا ہے. ایک اس کی ول پاور کو ختم کرتا ہے, اور ایک اس کے سورسز کو کاٹتا ہے. اس کی جس کے ساتھ ریلیشن ہوتی ہے نا, جو اس کو پاورفل بناتا ہے, اس کو توڑتا ہے. آپ کو پتا ہے نا وہ سورسز, جیسے ریلیشن ہے میری کسی بڑے انسان کے ساتھ, فار ایگزامپل میری منسٹر کے ساتھ دوستی ہے, یہ منسٹر میرے ساتھ سب کام کرتا ہے, میرے لیے سب کام کرواتا ہے. لیکن جیسے ہی اس منسٹر کے ساتھ میری دوستی ٹوٹی اور دشمنی بڑھی, کیا ہوگا؟ ختم. تو دوسرا کام جو شیطان کرتا ہے وہ ہمارے سورسز کو کاٹتا ہے. وہ جو ہماری مضبوط سورسز ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سب سے مضبوط سورسز ہمارے خود کے رشتے ہوتے ہیں, ہمارے رشتوں کو توڑتا ہے. اور مضبوط سے مضبوط سورس جو ہماری ہے اس کو کاٹتا ہے. اگر یہ ہمارا جو ریلیشن ہے نا, یہ ربط کٹ گیا نا, پھر کچھ بھی انسان نہیں بچتا. وہ کون سی؟ وہ دو, وہ کٹی نا, ختم. پھر آپ سمجھنے میں جیسے اللہ کہتا ہے نا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم. قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے کہیں کرنا تھا. 56 بیماریاں ہیں جن کی, جس میں قلب کا لفظ استعمال ہے. 56 بیماریاں, 200 سے زیادہ آیاتیں ہیں جس پہ صرف قلب آیا. فؤاد کی بات نہیں کر رہی, میں صدر کی بات نہیں کر رہی. 56 بیماریاں ہیں جو دل کی اللہ نے بتائی, لیکن ان میں سب سے خطرناک ہر بیماری کے لیے اللہ کہتا ہے ہاں اس کا علاج دیتا, اس کا علاج دیتا ہوں, اس کا علاج. قفل کہتا ہے نا, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قفل لگ گیا, کوئی بات نہیں, چابی کھل جائے گی. بہت زیادہ ہمیں علاج بتاتا ہے, لیکن ایک چیز کا علاج نہیں بتاتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تبع اللہ, جب تبع اور ختم ہوتا ہے نا, بات ختم, پھر دوبارہ وہ اپنے شیپ میں واپس نہیں آتا. تو ہاں مومنات, شیطان دو سورسز ہماری اور ختم کرتا ہے. وہ ہے سب سے پہلے میں نے ابھی آپ کو بتائی, اللہ کے ساتھ کنیکشن ختم کرتا ہے. وہی نا, مومن کو کہتا ہے دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے, دیکھو اللہ. ہم اپنی اچھی چیزوں کو نہیں دیکھتے. آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو چڑیا کی مثال دی تھی, میں آپ کو دوبارہ چڑیا کی مثال دیتی ہوں. ایک چڑیا تھی, ہم جب ایران میں تھے تو ہماری ٹیچر بہت سنایا کرتی تھی, ہمیشہ سناتی تھی کہ یہ تمہیں یاد رہے گا. لیکن ایک چڑیا تھی, چکلی تھی ایک, وہ باغ میں بہت ہمیشہ کھلاتی رہتی تھی, بہت خوش رہتی تھی, اور اس کی آواز جتنے بھی باغ کے پرندے تھے, چرندے تھے, درندے تھے, سب کو بہت اچھی لگتی تھی.
और जब चिड़िया ची ची करती थी तो सारे परिंदे दरिंदे सब जमा होते थे और बड़ी उसके साथ प्यार करते थे और मिठास के साथ उसके साथ बोलते थे। एक कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि चिड़िया खामोश हो गई, चुप 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 बिल्कुल चुप बिल्कुल चुप। सारे जंगल के परिंदे दरिंदे अजब हो गए कि इसको हो क्या गया। फरिश्ते इससे मोहब्बत करते थे। फरिश्तों ने कहा, फरिश्ते गए चिड़िया के पास, कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों खामोश हो गई हो? लेकिन मुझे एक बात करनी। फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह इसको क्या हुआ, क्यों ये चुप हो गई है? अल्लाह कहता है तुम हटो, मैं खुद इससे बात करता हूँ। अल्लाह कहता है, और मेरी टीचर इस तरह से समझाती थी एक चीज़ जो हमें समझनी है, जिस तक हम पहुँचना है ना, मैं उसकी बात करूँगी। तो हमारी टीचर कहती थी कि जब वो अल्लाह कहता है चिड़िया से कि तुम क्यों खामोश हो गई हो, तुम्हें क्या हुआ है? वो कहती है अल्लाह से, देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। वो अल्लाह से कहती है, अल्लाह मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जब मैं अपने घोंसले में, मैं अपने घर में सुकून के साथ सो रही थी तो तुमने मेरे अचानक से तूफान को भेजकर मेरे घर को क्यों तबाह कर दिया? अल्लाह कहता है उसको, अफसोस तुझे सिर्फ एक चीज नजर आई, मैंने तुझे प्यारी सी मीठी आवाज दी, मैंने तुम्हें इर्द गिर्द के लोगों की मोहब्बत दी, मैंने तुझे खूबसूरत घर दिया, मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे रिस्क दिया, मैंने क्या, और मैंने तुम्हारी मोहब्बत को फरिश्तों के दिलों में डाल दी। तुमने ये कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक देखा कि मैंने तेरे घर को तबाह किया। तो सुनो, रात के वक्त जब तुम मीठी नींद सो रही थी तो एक बहुत बड़ा सांप आया और तुझे खाने के लिए, मैंने तेरी जिंदगी को बचाने के लिए तूफान को भेजा कि ताकि तुम्हारा जब तूफान आएगा घोंसले से निकलोगी, तूफान जो है वो उस सांप को हटा देगा और तुम बच जाओगी। कभी तूफान आते हैं हमें बचाने के लिए है, और हम समझते हैं कि अल्लाह को पता नहीं क्या हमारे साथ दुश्मनी है, अल्लाह हमें माफ करे। तो जो हमारी मेन सोर्स है ना, वो अल्लाह के साथ कनेक्शन, अल्लाह के साथ रिश्ता, वो तोड़ता है। अब देखो, जब हम हमारा अल्लाह ना करे रिश्ता अल्लाह के साथ टूट जाए ना, तो आऊज़ बिल्लाह भी कोई फायदा नहीं देता। कितनी दफा, लाखों दफा भी कौन होगा, जब ये कनेक्शन टूट गया तो बस बात खत्म। हाँ मोमिना, और फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ हमारी कनेक्शन, वही मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ। तो ये शैतान की जो है वो मेन चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं मिनल जिन्नति वन्नास में, जिन्ना में आती हूँ, उसको थोड़ा सा करती हूँ। हाँ मोमिना, सूरह जिन पढ़िएगा, उसमें अल्लाह कहता है नफर मिनल जिन्न फस्तमअ नफर मिनल जिन्न फक़ालू इन्नहु समअ। कुछ जिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे और कुछ जिन जो थे वहाँ से गुजर रहे थे, और जब जिन गुजर रहे थे ना तो उन लोगों ने सुना, इन्ना समअ नफर मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिह, कि हम जहाँ से गुजर रहे हैं हम अजीब सा कुरान सुन रहे हैं, ये किसी मखलूक के कलाम नहीं है, यहदी इला रुश्द, ये तो हमें हिदायत की तरफ बुला रहा है। अजब बात ये होती है, मैं हैरान हूँ। अल्लाह ने कहा शैतान से मजबूत मखलूक इंसान है। कुरान कहता है मैंने शैतान को भी शरीयत दी है, मैंने जिन को भी शरीयत दी है, जिनों इंसान को मैंने जहन्नुम जो है वो जन्नत जहन्नुम हिसाब किताब सब में बराबर है। लेकिन दो कुव्वतें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ने इंसान को शैतान से अफजल करार दिया। सबसे पहली कुव्वत ये है कि जिनों में आज तक कोई नबी नहीं आया और जिन जो है वो इंसान नबी को फॉलो करता है, और कभी भी अल्लाह ने जिन को सजदा नहीं करवाया, वो बशर को सजदा करवाया था, आदम को। तो ये दो बड़ी कीमती चीजें जो इंसान को कभी करती हैं जिन से भी। अब जिन क्या कह रहे हैं आप पढ़िएगा, मैं इसकी बहुत ज्यादा उसमें चीज में नहीं आती, आप पढ़िएगा। सूरह कसस भी है, मुझे लगता है मैं इतनी कुरान की आयत पढ़ती हूँ कि मुझे आयत कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। तो सूरह कसस में भी है और वहां पर भी आप पढ़िएगा, और सूरह जिन में भी। जिन कहते हैं कि इतनी मजबूत किताब है इनके पास। अजब हो गए जिन, नीचे उतर आए, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, मेरे नबी पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, आमन्नू बिही, हम तो आज ईमान ले ही आए। जिन्होंने कहा हाँ मोमिना, फिर वो जिन ईमान ले आए, अपना सब कुछ दे दिया, वेट कर
मुझे आके कहते हैं आंटी फला कोई, मैं किसी के पास गई, उसके पास है ना जिन था, जिन बोल रहा था। अच्छा मैंने कहा अच्छा जिन बोल रहा था, खुद जिन कहते हैं। हम अजब हैरत में यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्न फ़क़ालू, हैरत है उस इंसान पर जो इतना मजबूत है, जिसके पास इतनी ताकतवर किताब, यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्न, जिन्नों से मदद मांग रहे हैं। मैं नहीं कहती, ये कुरान की आयत बता रही हूँ मैं आपको, मैं उसका तर्जुमा बताती हूँ। हाँ मोमिनात, हज़रत सुलेमान कहते हैं अगर मदद लेनी है ना कुरान में रहमत से, ये एक मदद की सबसे बड़ी मदद की चीज है। मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन आ गया मुझे मजबूरन पढ़ना पड़ा। किसी का सवाल हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, कोई डाउट ज़हन में नहीं रखिएगा। कभी कभी होता है ना मजलिस पढ़ जाते हैं तो कभी कभी हम जल्दी में पढ़ लेते हैं, जबान में हो जाती है, अधूरी चीज रह जाती है, लेकिन फिर उसको बहुत बड़ा करने से बेहतर है आप पूछ लें ताकि क्लियर हो जाए हर चीज। सूरह कसस की आयत है, खुदावंद आलम उसमें कहता है ए लोगों, अल्लाह साफ कहता है, अगर किसी को चाहिए तो मैं वो आयत का एड्रेस भेज दूंगी, मैं अपने ग्रुप में भेज दूंगी। उसमें खुदावंद आलम क्लियर कहता है, क्लियरली कहता है, आपने सुनी होगी। अल्लाह कहता है कि जब हजरत सुलेमान इस दुनिया से चले गए, उसकी रूह परवाज कर गई, तो वो लकड़ी को पकड़ कर खड़े थे और उसके जिस्म में रूह मौजूद नहीं थी और जिन्नों को पता ही नहीं चला और वो डर के मारे काम किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। और खुदा कहता है ए लोगों, वो कीड़ा था ना दीमक, उसको पता चल गया कि हजरत सुलेमान इस दुनिया में नहीं है और दीमक ने लकड़ी को खाना शुरू किया। हजरत सुलेमान जमीन पे गिरे, जिन्नों को पता ही नहीं चला। अफसोस कि जिसको इतना पता न चले कि मेरे सामने मुर्दा है या जिंदा, अल्लाह कहते तुम समझते हो उसको इल्म गैब है। मैं नहीं कहती, मेरी बात नहीं है, ये कुरान की आयत बता रही हूँ मैं आपको और वाज़े उसका सिर्फ तर्जुमा, कोई तफसीर नहीं। तो हाँ मोमिनात, इंसान, मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं जिन्नों के बारे में बेचारों के ऊपर पढ़ूँ, क्योंकि सुन नहीं पाएंगे सब लोग, हमारे अंदर कोई विल पावर नहीं है। मुझे आपको पता है, मैं अपने बच्चों से कहती हूँ मुझे जिन्नों से डर नहीं लगता, क्योंकि वो बेगुनाहों पे अटैक नहीं करते। मुझे इंसानों से डर लगता है क्योंकि वो बेगुनाहों पे हमला करते हैं। हाँ मोमिनात, यहाँ पर हम आते हैं तो वही मुझे सिर्फ बताना है कि इंसान जो है वो जिन से भी पावरफुल है और शैतान जो है वो जिन की मखलूक है। तो 3 पॉइंट्स बताऊंगी, फिर मसाइल की तरफ आऊंगी। वही कहते हैं ना, बातें और कुरान की आयतें इल्म इतना है कि नहीं खुल सकता। अगर हम अशरे तो क्या, अगर हम सालों सदियों में बैठ के बात करें ना तो नहीं खुल सकता। पर थोड़ी सी शैतान की क्वालिटीज में आती हूँ और फिर आजकल जो हमारे, मैं ये सारी चीजें इसलिए कहती हूँ कि हमारे हाथ में स्मार्टफोन होता है ना। मैं बैठी हुई चेक लगाकर किसी दुनिया को पता नहीं चला मैं कर क्या रही हूँ अपने फोन में। इसलिए मेरे अंदर खुद मैं पावरफुल जब होंगी ना तो मेरे लिए दुनिया की कितनी भी चीजें आ जाएं मुझे तकलीफ नहीं दे सकती, मुझे गुमराह नहीं कर सकती है। हाँ मोमिनान, शैतान की कुछ क्वालिटीज बताती हूँ और फिर आज शैतान को मैं खत्म करके ही रहूंगी। कल मुझे बेचारा इंसान है मिनल जिन्नती वल नास, लास्ट नास को खत्म कर दूंगी। तो हाँ मोमिनान, हमने सूरह आराफ पढ़ी निकल और सूरह आराफ में हमने कहा था खुदावंद आलम को शैतान ने कहा था कि ए अल्लाह मैं इन पे हमला करूंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से इनको घेर के रखूंगा। पता है क्या है, कहा आगे से हमला करूंगा, यानी फ्यूचर का बारे में मैं उसको बताऊंगा कि तुम अपना फ्यूचर बनाओ, कैरियर बनाओ दुनिया के हिसाब से, आखिरत के हिसाब से नहीं। तुमने आखिरत जब आएगी तब देखी जाएगी। आखिरत किसने देखी है? करता है ना, हम अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाए, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की तरफ आने नहीं देते। हम समझते हैं यही बस फ्यूचर है कि जब उसको अच्छी जॉब, अच्छी सीट, अच्छी चीज मिल जाए, और फिर वो बाई तरफ से आता है, कोई हराम काम कराता है, गलत काम कराता है, और उसको उसके जो बदतरीन आमाल होते हैं उसको खूबसूरत करके सजा के पेश करता है। और
सीधे तरफ से आता है। सीधे तरफ से क्या आता है कि जैसे हमारी जिम्मेदारी है, सीधे तरफ से क्या है, मेरी औलाद मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी है, मेरा शौहर, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, जो उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, उसको वो तोड़ के रख देता है। वो उसको जिम्मेदारियों को और अच्छे कामों को करने नहीं देता है। हाँ मोमिना, तो पीछे से कहता है, पीछे से क्या कहता है, अब खुद कितने लोग ऐसे होते हैं ना, जो मैं भी कभी कभी कहती हूँ, हाय मैं तो गुनहगार हूँ, मेरी जबान में तो असर ही नहीं होगा, मैं कैसे दुआ मांगू, मैं किसी और से कहूँगी आप दुआ मांगो ना मेरे लिए, बनी इतनी मैं ना उम्मीद हूँ अल्लाह से कि मैं दूसरों को कहती हूँ आप मेरे लिए मांगो, और मुझे शैतान ने अपने आप को गिरा के पेश किया। शैतान हमें गिराता है अपनी नजरों में, तुमने ये किया ना, अब तुम्हारी माफी नहीं है, तुम खराब हो, तुम बदतरीन हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम सबसे जमीन की गंदी तरीन मखलूक हो। मुझे बताता है कि मैं सुबह भी यही पढ़ रही थी ना कि कुछ तो खास है हम हुसैनियों में कि अल्लाह ने हमारे दिलों में हुसैन डाला है। कुछ तो खास चीज है कि कुरान अहल बैत की मोहब्बत रूए जमीन में कितने इंसानों, उनमें से हमारे अंदर डाला है। रूए जमीन में कितने लोग खैर के गुनाह में, फहाशत में, गलत कामों में, न जाने कितने बेचारे कहाँ कहाँ हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें चूज किया मजलिस हुसैन के लिए, लिबास पहनाया काला। अल्लाह ने हमें हमारी जुबान पे कुरान को जारी किया। हम उठते हुए कहते हैं अल्लाह अकबर, नमाज कज़ा हो जाए तो रो पड़ते हैं, कज़ा हो गई। कौन देखता है सुबह को जब हम पढ़ते हैं, लोग तो नहीं देखते, रियाकारी तो नहीं। मैं हमेशा अल्लाह से कहती हूँ एक चीज़, हमेशा जब मैं नमाज पढ़ती हूँ मैं अल्लाह से यही कहती हूँ, वसवसे आते हैं नॉर्मल है, जहन चले जाते हैं उधर, नजर इधर उधर चली जाती है, होता है नॉर्मल है, इंसान हूँ। जब मैं खड़ी होती हूँ ना नमाज के लिए, मैं अल्लाह से एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ और मुझे यकीन होता है कि मेरा रब जो है ना वो कबूल करेगा। आपको पता है ना, जब एक बच्चा अपनी माँ से कहता है ना मेरी माँ ये कर दो ना बिच्छी माँ, अगर एक बच्चा यहाँ किस करे, यहाँ किस करे, हाथों को छूमे, माँ पिघल जाती है। अल्लाहुम्मा यानी पिघल जाना। हाँ मोमिना, मैं अल्लाह से ये कहती, जब मैं नमाज के लिए खड़ी होती मुझे पता है मेरे पास वैसे आएंगे, ये आएगा, इधर से आवाज़ आएगी मम्मा, उधर से आएगी मैदान, कुछ ना कुछ होता है। पर अल्लाह से कहती हूँ ए अल्लाह तू गवाह रहना, तेरे रकीब और अतीद गवाह है कि मैं जो अल्लाह अकबर कह रही हूँ ये सिर्फ तेरी साथ है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, 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 औलाद अली बाबा से बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। हाँ मोमिना, जब मैं अल्लाह से कहती हूँ ए अल्लाह, सच बात है ना, मेरा काबे की तरफ खड़ा होना ही तेरी जात के लिए है, मेरा वजू करके आना ही तेरे लिए है, मेरा अल्लाह अकबर कहना तेरे लिए, मेरे रुकू में जाना तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए। अगर ख्यालात इधर उधर चले जाते हैं तो तू तो गफूर रहीम है, तूने खुद कहा है, तो क्या तू कबूल नहीं करेगा? जब हम इस तरह से दाखिल होते हैं नमाज में, मैं जब तशहहुद पढ़ के उठती हूँ मेरे दिल को इत्मीनान होता है, कुछ ना कुछ हिस्सा तो जरूर कबूल हुआ होता है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कबूल ना हुआ। तो हाँ मोमिनान, इंसान की बहुत पावरफुल मखलूक है और खुदावंद आलम से शैतान ने कहा मैं हर तरह से हमला करूँगा, लेकिन अल्लाह ने हमें हर तरह का इलाज भी दे दिया। फिर दो क्वालिटीज शैतान की ऐसी हैं जो बदतरीन क्वालिटीज हैं, जो उसने कहा कि ए अल्लाह मैं तेरे इंसान के अंदर डालूंगा। वो कौन सी दो क्वालिटी है? वो है सूरह आराफ में, बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। हाँ मोमिनात, वो दो क्वालिटीज हैं। काल, जब उसने कहा मैं ये करूंगा तो अल्लाह ने कहा काल फखरुज मिनहा, तुम यहाँ से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम मज़कूमन व मदहूरा हो। दो क्वालिटीज जो बहुत अल्लाह को नापसंद है, ये दो क्वालिटीज खुदा ना करे अगर हमारे अंदर मौजूद है ना तो ये हमें निकाल देनी चाहिए। अल्लाह करे कि ना होगी हमारे अंदर, कहा तुम मज़कूम हो और मदहूर हो। लमन तबअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। और यहाँ पर हैरत की बात ये आती है, एक जगह अल्लाह कहता है जिसने तेरी
और एक जगह पर आकर कहता है तुम मज़मूम हो, मदहूर हो, और जिसने भी इस क्वालिटीज में और दूसरी सिफतों में जिसने भी तुम्हारी पैरवी की ना, मैं उनको जहन्नुम से भर दूंगा। यानी दूसरी सिफतें तो है ही है, लेकिन अगर कोई इंसान, अगर किसी इंसान के अंदर शैतान की दो क्वालिटीज आती है, मज़मूम और मदहूर, तो उससे अल्लाह सख्त नफरत करता है। आपको पता होगा, मैंने माह रमजान में भी इसको बताया था कि मज़मूम का मतलब होता है कि शैतान ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा ना कि हजरत आदम बन रहे थे, मैंने पहले भी बताया, फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह तुम ऐसी मखलूक बना रहे हो यहसिफुद दिमाग, जो खून बहाएगी, जो लड़ेगी आपस में, जिसको तुम जितना दोगे वो कभी भरेगा नहीं, वो कहेगा और दो और दो और दो, और की फिक्र में इंसान रह जाएगा। जब फरिश्तों को कुछ खराब लगा उसने बोल दिया, लेकिन शैतान साइड पे देखता रहा, अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। उसने अपने ही फिक्र में, अपने ही बुराइयों में, अपने ऊपर वो सोचता था मेरी जगह थी, मुझे मिलनी थी, मैं अफजल था। वो अंदर इतना उसने चिंगारी को लावा बना दिया था, और वो अंदर कुड़ता रहा, अपने आप को खाता रहा। लेकिन जब अल्लाह ने कहा सजदा करो, तो वहां पर वो फट पड़ा, अचानक वो फट पड़ा। उसको कहते हैं मज़मूम। ज़अमा नहीं, ऐन वाला ज़अमा नहीं, ऐन वाला जो ज़अमा होता है उसका मतलब होता है सोच और फिक्र और गुमान। ये है ज़ हमजा मीम, हाँ मोमिनात। और ज़अमा की एक और मीनिंग होती है, जैसे नहीं आप किसी पेपर, आपके पास कोई पेपर हो सीधा, आप उसको यूं करते हो, किसी पेपर को ना आप यूं मरोड़ के ना ऐसे कर दो, उसको कहते हैं मज़मूम। शैतान की क्वालिटी है कि वो मज़मूम हो जाता है यूं। और अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी होती है, हम मोमिनीन के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, इतना बुरा अंदर ही खाते, और जब मौका मिले उसको निकाल दो, जब मौका मिले अपनी पूरी आग को ऊपर डाल देने को मज़मूम कहते हैं। सख्त नफरत करता है मेरा अल्लाह इस क्वालिटी से। दूसरी क्वालिटी मदहूर का मतलब होता है धुतकार के निकालने वाला, लेकिन मदहूर का असल जो मीनिंग होती है वो ये होती है जहां तुम्हारा काम नहीं है वहां घुस जाना। जब आदम अलैहिस्सलाम को, बीबी हवा को खुदावंद आलम ने जन्नत में रखा था, शैतान का क्या काम था? शैतान का कोई काम था? कोई काम नहीं था, अपने काम से लग जाता। वो घुसा जन्नत में तो नहीं घुसा, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर दी उसने। आप समझ गए ना? जगह ना हो वहां घुस जाना, और घुसकर हमको खराब कर देना। दो मियाँ बीवी के बीच में किसी को हक नहीं बनता, कोई बोले किसी को हक नहीं है। आपको एक आयत बताऊं ना, अब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दो मियाँ बीवी के बीच में हत्ता के, अब मैं माँ हूँ ना, मुझे हक नहीं है कि मैं माँ हूँ, मैं अपने बेटे को या मैं अपनी बेटी के उसके हस्बैंड और वाइफ के बीच में आऊँ। कुरान की आयत है, बताओ कुरान की आयत, सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 और 101 पढ़िएगा, जिसमें अल्लाह ने हारूत और मारूत का जिक्र किया है। अल्लाह कहता है जो भी कुरान पढ़िएगा, मैं तो सब कुरान बताती हूँ, आयत एड्रेस देती हूँ, आप जाकर देखते। कुरान कहता है जो भी मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, धनी बाड़ी के बीच में जो भी झगड़ा कराता है, उनके कान को भरता है, उसको खुसुट करता है, उनके दिलों में नफरत डालता है, अल्लाह कहते हैं फौवा काफिर। मैं नहीं कहती जो भी अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, इस बेचारे की माँ थी ना, उस बेचारे की माँ थी ना, नहीं यहाँ माँ बाप का तो बात ही नहीं है ना, फौवा काफिर। क्लियर मेरे रब ने की हम मैं नहीं कहती यार। सूरह पढ़िएगा, सूरह आल इमरान आयत नंबर 101 और 102, जहाँ हारूत और मारूत का जिक्र है। और कृष्ण के मोहम्मद मुझे लगा फिर उसके कमीशन अधूरा रह गया, इस बात को फिर एक अशरा रखना पड़ेगा इंशाअल्लाह। हाँ मोमिनात, ये हमें बेचारा घुमा रहा है इधर बेचारा तो नहीं है, बेचारे तो हम लोग हैं।
برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے، میں نے آپ کو بتایا، مذموم ہے، مدحور ہے، صغیر ہے، رجیم ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، اور بھی اس کے بہت زیادہ مشن ہے۔ وہ تھوڑے سے مشن میں بتا دیتی ہوں کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی پاورفل ہیں، ہم بھی اس کو دکھا کے چھوڑیں گے۔ مین چیزیں تو ہم کہیں پہ بھی سن لیں گے، دوسری چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مجھے لگتا ہے جو اس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آتی ہوں کہ قرآن کی آیت سورہ توبہ میں ہے کہ جب شیطان جو ہے جو انسان کے ساتھ رہے گا نا، یہ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ انسان جس نے پوری زندگی شیطان کے کہنے پہ چلائے، سب سے بدترین سزا جو جہنم میں ہے نا، وہ جہنم کی آگ نہیں ہوگی، آگ تو ہے ہی ہے، باقی جہنم کی جو عذاب ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے کہ جب ایک انسان کو اسی شیطان کے ساتھ اسی جہنم میں رکھا جائے گا نا، تو انسان فریاد کرے گا، اے اللہ تجھے جو مجھے سزا دینی ہے دے دو، مجھے جس جہنم میں رکھنا ہے رکھو، لیکن اس شیطان کو مجھ سے دور کرو، کیونکہ اس وقت وہ مجسم جسم کے ساتھ اس کے سامنے ہوگا اور اس کو بار بار ایسے تانے مارے گا کہ جو اس کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک ہوگا۔ ہمیں پتا ہے نا، دماغ جو ہے، جو دماغ کا پریشر ہوتا ہے نا وہ تھکاتا ہے، جسم کا پریشر اتنا نہیں تھکاتا۔ ہاں مومنات، اتنا سنائے گا، اتنا سنا، قرآن کہتا ہے انسان فریاد کرے گا، اے اللہ اس کو مجھ سے دور کرو، اور دوسری انسان فریاد کرے گا، شیطان کو کہے گا کہ تیری وجہ سے میں جہنم میں ہوں، تم نے مجھے جہنم میں بھیجا، تمہاری وجہ سے ہوں۔ اب پتہ ہے شیطان کیا کہے گا؟ شیطان جواب دے گا، قرآن کی آیت ہے، شیطان کہے گا وَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھ پہ کیوں لعنت بھیج رہے ہو، مجھ پہ کیوں بھڑک رہے ہو، اپنے نفس پہ لعنت بھیجو، اپنے نفس پہ بھڑکو۔ میں نے اپنی زبان میں کہتی ہوں، میں نے تمہاری کنپٹی میں پسٹن نہیں رکھی تھی کہ یہ کام کرو، میں نے تو دعوت دی تھی، میں نے دعوت دی تھی، تم نے کہا لبیک، میں نے کہا بسم اللہ چلو، میں نے فورس نہیں کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے میں نے فورس نہیں کیا تھا۔ آج بھی اگر جب میں آپ سے کہتی ہوں آپ میری مجلس میں آؤ نا، جب آپ کو نیند آئے گی کوئی بہانہ ہوگا، نہیں آؤں گی، منع کر دیا نا، مجلس کے لیے بھی منع کر دیا، تو کیا شیطان کو منع نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں۔ ہم میں انشاءاللہ ہدایت ٹی وی پہ کرنے والی ہوں، جو ہمارے سینس ہے نا، اور جو ہمارے عقل کے، میں نے آپ کو کہا جنود، جو ہمارے دماغ کے، ہمارے جو دل اور دماغ پہ جو سینس ہیں، جو حصے ہیں، جو جذبات اور احساسات، یہ کس طرح سے ہمیں ہائی جیک کرتی ہیں، کس طرح سے یہ ہمیں اپنے کنٹرول میں رہتی ہے، اور ہم کس طرح سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پورے انسان جو ہے نا، اس کی نچوڑ کر یہاں اس جگہ پہ ہے۔ تو ہم مومنان یہاں پر خود شیطان نے کہہ دیا، میں نے پسٹل نہیں رکھی کہ تمہارے سر پہ یہ کام کرو، خود کیا، میں نے کہا کرنا، کان میں آ کر کرنا ہے، ہاں کرنا ہے، چلو نہ کرتے ہیں، کر لیا، مجھے مت بولو، وَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ ہاں مومنان، پھر اس کے بعد خدا بندی عالم قرآن میں کہتا ہے إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کا جو ہیلا بہانا، اس کی پلاننگ ہے نا، بہت کمزور ہے۔ اور خود شیطان نے کہا تھا نا، خدا بندی عالم سے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے خالص بندوں کے میں سب کو کروں گا، لیکن صرف تیرے خالص بندے جو ہے وہ میرے اوپر نہیں آئیں گے، میں ان کو نہیں کنٹرول کر سکوں گا۔ اللہ نے کہا شیطان کو کہ جاؤ، تم جتنا تمہیں کرنا ہے نہ کرو، کہا مجھے اجازت دو، کہا ہاں اجازت ہے۔ حیرت کی بات ہے، کہا یوم یبعثون، شیطان کو پتا تھا کہ قیامت کا دن بھی ہوگا، ہمیں تو بعد میں پتا چلا، انسان کی خلقت کے بعد۔ شیطان کو صراط مستقیم کا پتا ہے ہم سے پہلے، شیطان کو قیامت کے دن کا پتا ہے، اس کو پتا تھا کہ زمین پہ آئے گا بندہ، اس سے امتحان لیے جائیں گے، اس نے، ہم کہتے ہیں نا گرم لوہا مارو ہتھوڑا، شیطان نے وہ کام کیا ہمارے ساتھ۔ تو ہاں مومنات، اللہ نے کہا شیطان کو تجھے اجازت ہے کہ آخری بات کہوں گی جو دلوں کو ہلا دے۔ میرا تو دل بہت ہلتا ہے ایسی چیزوں سے، میں دیکھ نہیں پاتی، میں سوچتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ بات کروں، اس کے ساتھ ڈسکس کروں کہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ ہم اپنی جنریشن کو بچا سکیں۔ ہاں مومنات،
शैतान के लिए अल्लाह ने कहा तुझे इजाज़त दी, कहा मुझे इजाज़त चुका दी, कहा आगे से हमला करूँ करो, पीछे से करूँ तो करो, इनके खून में शामिल हो जाऊँगा, हो जाओ। पर अल्लाह ने कहा तू मेरे खालिस बंदों पे नहीं आ सकता, जो मेरे मुखलिस बंदे हैं ना, तुम कभी नहीं, जो मेरा बंदा होगा, अल्लाह कितना फख्र करता है ना, जो मेरा बंदा होगा तेरे पीछे कभी नहीं लगेगा, जो तेरा बंदा होगा तेरे पीछे लग जाएगा, फिर उसको और तुझे साथ जाने में डाल दूंगा। हम मोमिनात इमाम जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इमाम जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान जो है ना वो अल्लाह के दरवाजे का कुत्ता है। किसने सुनी है ये हदीस? किसी ने सुनी है हदीस? इमाम फरमाते हैं शैतान जो है ना वो अल्लाह के दर का कुत्ता है। जब आप किसी के घर पे जाते हो और कुत्ता दरवाजे पे होता है और बंधा हुआ कुत्ता होता है, तो कुत्ता क्या करता है? जो नया आने वाला होता है उस पे भौंकता है, लेकिन जो हमेशा रोज आता है ना उस पे नहीं भौंकता। तो शैतान उस पे भौंकता है जो पहली दफा खुदा की तरफ जाता है, लेकिन जिस पे कुत्ता भौंकता है, अगर मैं किसी के घर पे जाऊं और किसी के घर पे कुत्ता हो दरवाजे पे, मैं क्या करूंगी? मैं मालिक को फोन करूंगी, कहूंगी प्लीज आप अपने कुत्ते को संभालो, मैं अंदर आ जाऊं, ऐसे करूंगी ना। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कितनी खूबसूरत बात बताते हैं, कहते शैतान अल्लाह के दरवाजे का कुत्ता है, वो आप पे भौंकता है और भौंकेगा, आपको आने नहीं देगा घर में। आपको करना काम क्या करना है? आपको घर के मालिक को बुलाना है, अल्लाह को बुलाना है, उसको को अपने इस कुत्ते को कंट्रोल करो, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। इतनी खूबसूरत मेरे मौला हमें हदीस बताते, आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु जब बार बार कहते हैं, फस्तईज़ बिल्लाह, कुरान की आयत सूरह साफ़ात में अल्लाह कहता है जब भी कुछ पढ़ो, जब भी कहीं जाओ, जब भी खाओ पियो, फिर पहले पढ़ो फस्तईज़ बिल्लाह, क्या आऊज़ु बिल्लाह कहो शैतान से। हाँ मोमिना, आज हम मीडिया को देख रहे हैं, मीडिया है ना बढ़ रही है। अभी मैं एक चीज देख रही थी, एक शख्स था जो मुसलमान तो नहीं था, मैं उसकी क्लिप बताती हूँ कि आजकल हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। आप उसको ढूंढेंगे आपको मिलेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा 2-3 चीजें बताती हूँ। उसका नाम था रॉजर मार्लो। रॉजर मार्लो आप लगाओगे ना, रॉजर मार्लो का इंटरव्यू आपको पूरा नेट पे आ जाएगा। आपको पता है ना जो बड़ी जंगे अजीम, दूसरी जंगे अजीम हुई थी, ये तब का सिपाही था, ये तब का सिपाही था, उसने ये जंग जीती थी। जब जंगे जहानी 2 लगी थी ना, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, उसमें ये सिपाही था और इसने ये जंग जीती थी, तब की बात बता रही हूँ मैं आपको। उसका पूरा इंटरव्यू आपको इंटरनेट पे मिलेगा। मैं सिर्फ उसका किस्सा थोड़ा सा बताती हूँ ताकि हमारे जहनों में ये चीज आए कि हमारे ऊपर हो क्या रहा है, हम कितनी दज्जाली दुनिया में गुम हैं। हम अपने प्रॉब्लम में होते हैं ना, अल्लाह मेरा रिस्क हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा खाना आ जाए, घर से ये हो जाए, फला हो जाए, फला हो जाए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम कितनी दलदल में भी फंसे हुए हैं। चारों तरफ से कौन सी दलदल है हमारे ऊपर। तो हम ये जो इस शख्स का नाम रॉजर मार्लो है, वो कहता है कि जब मैं जंगे जहानी जीत के आया था तो मेरा एक दोस्त था, वो कहता है मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि रॉजर चलो हम एक पार्टी में चलते हैं। उसने कहा नहीं मैं पार्टी में नहीं जाऊँ। उसने कहा नहीं चलो हम पार्टी में जाते हैं ऐसे। फिर उसने कान में आकर कहा क्या तुम्हें अपने मरे हुए माँ बाप से मुलाकात करनी है, रूह को बुलाना है। खतरनाक चीजें हुई है इस दुनिया में, कौन बुला सकता है रूह को? अल्लाह की जात के आगा मकारिम शिराजी का फतवा है। आगा मकारिम से किसी ने पूछा कि अल्लाह ये जो अरवाह को बुलाते हैं क्या ये सच है? उसने कहा 99% झूठ है, 1% वो भी सिर्फ और सिर्फ जो खास अल्लाह वाला बंदा हो वो भी कर सकते हो। कहाँ मिलेगा खास अल्लाह वाला बंदा इस दुनिया में? आगा बहजत से किसी ने पूछा इंसानी कामिल कौन है इस दुनिया में? कहा इंसानी कामिल इस दुनिया में फकत इमाम नबी आखिर वो कहता है कि मुझे वो ले गया। मैंने कहा मैंने नहीं आना। तो उसने कहा कि तुम चिकन बन गए हो, तुम मुर्गी बन गए, तुम डरते हो चिकन की तरह। तो उसने कहा अच्छा। उसने मुझे बोला शैतान करता है तो वैसे करते हो, हिम्मत आ जाती नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। शैतान के एक फॉर्मूला ये भी होता है, मैंने लिख के लाई थी, अल्लाह रह गए। तो हाँ मोमिनात, वो
कहता है कि तुम चिकन बन के, उसने कहा हाँ बस मैं आता हूँ, मुझे मुलाकात करनी है। उसने कहा कि मैं उसके साथ गया, वो जो फंक्शन था वहाँ पर मैंने देखा कि एक औरत थी, उसको एक बहुत बड़ा फ्रॉक पहना हुआ था, रेड कलर का किसी कलर का, और वो रेड कलर का या किसी कलर का उसको बहुत बड़ा फ्रॉक था, और अजीब क्रिएचर थी, वो एक अजीब मखलूक थी, और उसके नाखून जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े नाखून थे, अजीब उसकी शक्ल थी, और लोग उसके सामने बैठे हुए थे। और जब लोग उसके सामने बैठे हुए थे ना, तो लोगों ने कोई उसके पास आ रहा था, क्योंकि मेरे सामने एक औरत बैठी हुई थी, और उस औरत ने उसको बोला कि मुझे मुलाकात करनी है मेरे मरे हुए दोस्तों के साथ। अचानक उसके मरे हुए दोस्त आ गए और उसने उनके साथ बातें करना शुरू कर दी। कहते हैं कि इसी तरीके से जब मेरी बारी आई फिर मैं कांप रहा था, और जब मैं कांप रहा था, ये मैं आपको बताती हूँ, आप नेट पे देखिएगा, रॉजर मार्लो जो सेकेंड वर्ल्ड वार में सिपाही था या उसने जंग जीती थी, उसका इंटरव्यू अभी भी मौजूद है, आप लगाएंगे ना पूरा का पूरा गूगल में आ जाएगा। तो कहता है कि मैं जब बैठा हुआ था तो मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, और मैं जब बैठा हुआ था तो वो औरत मेरे पास आती है और मुझे आकर कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मुलाकात करती हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने देखा मेरे मरे हुए माँ बाप की रूह पीछे से आने लगी। शैतानी कुव्वतें कितनी तेज हैं। फिर कहते मैंने अपने माँ बाप से बात की, मैंने उनको बताया मैं जंग जीत गया हूँ, ये हुआ, रोना धोना शुरू हो गया। क्या हो सकता है कि उसके शैतान जो है उसके माँ बाप के रूह उड़ा सके, कोई और शैतानी कुव्वतें थी ना ये तो हाँ मोमिनात। फिर थोड़ी देर के बाद वो जो क्रिएचर, वो जो मखलूक थी, वो अब वो मुझे कहती तुम हमेशा आओ मेरे पास, तुम आओगे ना तो मैं तुम्हें काफ़ी चीज़ें दूँगी। फिर वो रूप बदल देता है, फिर वो कोट और पैंट और उसमें मर्द की शक्ल में बन जाता है, और फिर वो उसको कहता है मैं तुम्हें वेल्थ दूँगी, तुम्हें मैं दौलत दूँगी, तुम्हें मैं ताकत दूँगी, तुम्हें मैं फेम दूँगी, और तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हें सब दूँगी। लेकिन हमारे कुछ, हम कहते हैं ना, हमारे कुछ रस्म और रिवाज है, हमें उसको फॉलो करना है। हमारे कुछ रस्म और रिवाज है, तुम्हें उसको फॉलो करना है। फिर कहता है कि वो अभी देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मजहबी होते हैं, वो क्रिश्चियन था, मुसलमान तो नहीं था, उसके अंदर कुछ वहम शुरू हो गए। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर वहम पैदा होता है तो हम नमाज पढ़ना शुरू कर देते, कुरान पढ़ना शुरू कर देते। हम सबसे बदतरीन जो हम करते हैं ना, वो हम यूँ करते हैं कि सिर्फ कुरान को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके तर्जुमे में नहीं आते। आज अगर मुसलमान रुए ज़मीन पर मुसलमान फ़कत कुरान को चलाकर सुनने के बजाय, फ़कत तिलावत एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के बजाय, अगर मुसलमान कुरान के अकीदों में, उसकी माना में, उसके मफ़हूम में, उसकी ताकत में, उसके पावर में, उसके इल्म में जाते ना, आज पूरी दुनिया पे कंट्रोल मुसलमानों का। हाँ बोलना, वो कहता है कि मुझे इतने वसवसे आने लगे, मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा आने लगा, बहुत उसका लंबा है, मैं शॉर्ट करके बताती हूँ। कहता है कि मैंने बाइबल खोली तो बाइबल के अंदर लूसीफर, आपको पता होगा ना, तो बाइबल का एक लूसीफर फरिश्ता था, आपने क्या, हम उसको शैतान कहते हैं अपनी ज़बान में, अल्लाह ने उसको दुकार के निकाल दिया था। कहता है कि वो सारी क्वालिटीज़ उसी दूसरे दिन में गया उसके पास, दूसरे दिन में उसके पास गया, और मैंने उसको बोला कि तुम कहीं लूसीफर तो नहीं हो, इस हमारे ज़माने में तुम शैतान तो नहीं हो। उसने कहा हाँ। फिर उसने बोलना शुरू कर दिया, उसने कहा जाने अनजाने, चाहते न चाहते, ज़मीन के सिवाय इस्लाम में जितने भी मजहब हैं वो मेरी वर्शिप करते, मेरी इबादत करते, मेरी पूजा करते। कहा कैसे? कहा तुमने देखा कि फिर वो सब मजहब के बारे में बताते कि उनकी पिक्चर्स, उनकी फोटोज और सारी जगह दिखाए, लोगों को बताया सब कि जैसे पीछे से उनका सूरज निकलता है, ये जो सूरज निकलता है ये मेरे पीछे से निकलता है। मैं पूरे मजहबों को ये बताता हूँ कि खुदा नहीं है, मैं खुदा हूँ, और सब मेरी। और क्या कहते हैं अब क्योंकि लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी चीज़ों में चले गए हैं ना, और अब लोगों को अल्लाह पे इतना भरोसा नहीं है, और अब अल्लाह को मानते भी नहीं, तो अब मेरा मिशन और इजी हो गया है। लोगों को अपनी इबादत कराऊंगा, अपने सामने झुकाऊंगा, वो जो चाहेंगे वो मैं उनको दूंगा। हाँ मोमिनात, ये मैं आपको बात बताती हूँ, जंग जहानी है, दूसरी जो जंग है, जो वर्ल्ड वार थी, आप सोचो उसको कितने साल हो गए, और ये जो मिशन है उस शैतान का, वो अब कितना बढ़ गया होगा। अब तो हम हर एक के हाथ में आ चुका है। तो हाँ मोमिनात, इस शैतान के
मिशन से हमें अपने आप को बचाना है, हमें हमारी औलादों को बचाना है। बस एक ही तरीका है हमारे पास, पूरी मोहम्मद और आले मोहम्मद के दर के पकड़ने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जिसने भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरवाजे को पकड़ा, मैं समझती हूँ वो कामयाब हो गया। हाँ मोमिनात, क्योंकि दरे मोहम्मद और आले मोहम्मद ऐसा दर है कि कोई गुनाहगार भी हो ना तो भी उसके दरवाजे से वापस नहीं आता। आपको पता है ना, करबला में 2 ऐसे शख्स थे जो इमाम हुसैन के दुश्मन थे। सुबह से असर तक इमाम हुसैन के साथ लड़ते रहे, इमाम हुसैन के साथ लड़ते रहे। लेकिन जब वो खेमों के पास आए ना तो उन्होंने बच्चों की आवाजें सुनी, और वो जब बच्चों की उन्होंने आवाजें सुनी तो उन्होंने कहा हम मोहम्मद को क्या मुंह दिखाएंगे। वो 2 शख्स जो सुबह से असर तक लड़ते रहे, आखिरी वक्त में इमाम हुसैन के पास आते, इमाम से माफी मांगते हैं और इमाम उनको माफ करते हैं और इमाम के लिए फिर वो जान देते हैं। अच्छा बात नहीं है, हम भी तो कह सकते हैं ना मौला, हम पूरी जिंदगी, उनको क्या नहीं पता कि हम दज्जाली दौर में रहते हैं। मैं हमेशा अल्लाह से कहती हूँ, खुदाया तू तो देख रहा है हमारे वक्त का इमाम तो हमारे पास नहीं है, हम तो दज्जाली दौर में रह रहे हैं, क्या तू हमारी तौबा को फौरन कबूल नहीं करेगा। हाँ मोमिनात, वो जो सुबह से असर तक इमाम के साथ लड़ते रहे, इन दोनों ने उनको पलटा के रख दिया इमाम के पास, तो क्या वो हमारे लिए नहीं करेंगे। मैं वही बार बार कहती हूँ, इस दज्जाली दौर में अगर बना रही है, इस शैतानी दौर में, तो मोहम्मद सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह ने हमें दी है ना, वो है हुसैन। वो हुसैन जैसी हस्ती है, हुसैन जैसी। अगर हुसैन ना होता तो जमीन पे हम कभी भी दज्जाल के साथ लड़ ना सकते। हाँ मोमिनान, अगर हुसैन ना होता तो हम आगे कभी ना जा पाते। एक दफा हजरत जिब्राइल आते हैं हजरत मूसा के पास और हजरत मूसा के सामने इमाम हुसैन का नाम लेते हैं। हजरत मूसा कहते हैं जिब्राइल ये कौन है जिसका तुम नाम ले रहे हो। कहा खुदा ने, जिब्राइल तुम हट जाओ, मैं खुद मूसा के साथ बात करूंगा। हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह ये कौन है हुसैन। कहा ए मूसा, जो मेरे हुसैन पे रोएगा ना, एक आंसू के कतरे के बदले में उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। फिर हजरत मूसा को खुदा बताता है, एक तारीफ लिखती है बहुत बड़े आयतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह मजलिस पढ़ रहा है मूसा के सामने, ए मूसा मेरे मोहम्मद के बच्चे को आशूर के दिन शहीद किया जाएगा। ए मूसा उसके जिस्म में से पुराना लिबास भी खींचा जाएगा। ए मूसा जब उसको शहीद किया जाएगा तो उसका जुल्जना, उसका घोड़ा अपनी पेशानी पे खून को मलेगा और खेमों में आएगा। हाँ ज़ादाराने इमाम हजरत मूसा को अल्लाह पूरी कहानी सुनाता है। हजरत मूसा अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह मुझे तब तक जिंदा रख जब तक हुसैन को देख न लूं। कहा ना मूसा, आज रोना है तो रो लो, तू जब भी रोएगा हुसैन में तुझे उतना सवाब मिलेगा। हाँ ज़ादाराने इमाम आज 11वीं मुहर्रम हो गई, आज 11वीं मुहर्रम हो गई। कोहराम वबा था, कोहराम मच गया, खयाम को लूटना था लूट लिया। जब खयाम पे हमला हुआ ना तो लोगों से कहने लगे लूटो तबर्रुकात ज़हरा। हाँ अज़ादाराने इमाम आहिस्ता आहिस्ता मसाइब की तरफ आऊंगी, सिर्फ 2-3 लफ्ज़ पढ़ूंगी मसाइब के। आज कल बहुत रोए हैं ना। हाँ ज़ादाराने इमाम वो वक्त आता है कि जब बीवियों को, बच्चों को बेगुजारा ऊँटों पे बिठाया गया। अरे ज़ैनब को, उम्मे कुलसूम को, सकी
पास इमाम सज्जाद कहते हैं ना, मेरे बाबा के जिस्म से सर को जुदा किया गया, मेरे बाबा के जिस्म में ऐसे घोड़े दौड़ाए गए कि मेरे बाबा का जिस्म उस मलमल के कपड़े की तरह हो गया कि जब जिसको हाथ में उठाया जाता दूसरी तरफ गिर जाता। मैं कहूँगी सवाब है मेरा, बीबी ज़ैनब आप किस तरह हुसैन के ऊपर हाथ में हुसैन को किस तरह उठाया, आसमान की तरफ बुलंद करके कहती है अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वा मुहम्मद हाज़ा हुसैन बिरम्र दमा वक्त वतक़द्दम हाज़ा। हे मोहम्मद ये वो हुसैन है जिसको सीने पे बिठाया करते थे ना, जिसके दांतों को छुआ करते थे ना, आज हुसैन है जिसके आज़ा कट गए। खुदाया मैं छोटी सी बात इसको अपनी बारगाह में कबूल करना। या अल्लाह परवरदिगार हमारे दिलों के अंदर जो हाजत है उसको पूरा करना। मुझे उस बीवी का वास्ता है जिसका नाम है रुबा। शामिल गरीबा का वक्त हुआ था ना, ए अल्लाह तुझे उस शामिल गरीबा के वक्त का वास्ता है। ए अल्लाह तुझे ज़ैनब के उस दिल का वास्ता है जिसने ये रुबा के लफ्ज़ सुने और बर्दाश्त की। जब शामिल गरीबा हुई उनकी बीवी आती है, थोड़ा सा पानी और अनाज लेकर ज़ैनब ने सबको दिए। खेमे के बाहर से एक बीबी की रोने की आवाज आती है। ज़ैनब जब जाती है तो देखती है कोई और नहीं है, रबाब है। पूछा रबाब क्यों रो रही, कहा थोड़ा पानी पिया, मेरे सीने में दूध आने लगा, मुझे असर याद आ गया। अल्लाह तुझे उस बीवी के दिल का वास्ता हमारे दिलों की तमाम हाजतों को पूरा करना, हमारी मुश्किलात को हल करना। हमें हमारी नस्लों को दज्जाली हुकूमतों से महफूज करना। हमें हमारी नस्लों को आले मोहम्मद का गुलाम और खालिद